Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pratika Gupta and topic for today is unilateral and bilateral contracts. Guys, before we move on, I'd request you कि अगर आप मेरी वीडियोस को नहीं देख रहे हो ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्टे इन टच विद दोज वीडियोस बिकॉज जैसे आज का टॉपिक है हमारा यूनिलेटरल एंड बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स. इसका बेसिक जो है वर्ड दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट. This contract word has already been explained in my previous video. It's a video on contract. It was my first video on the Indian Contract Act. इसमें मैंने बिल्कुल basic word contract को explain किया था. So in this video I'll be only telling you the definition. And before I move on, I hope that everyone studying with me here is in touch with what a contract literally means in the Indian Contract Act. Section 2 subclause H of the Indian Contract Act defines contract as an agreement enforceable by law, which means all agreements enforceable by law are called contracts. They are contracts. So this is defined under section 2 subclause H of the Indian Contract Act. अगर आपको नहीं पता इसका मीनिंग, आपको नहीं समझ आ रहा, do go watch that video and then come back, listen to this video. So let's get started. So topic is unilateral and bilateral contracts. Now unilateral contract, as the term itself indicates, is unilateral. Unilateral का मतलब होता है one sided, is it? So a contract which is made by one party to the other. It means unilateral contract is a contract which is a one-sided contract in exchange for an action. I'll give you an example. हम दो examples को discuss करेंगे. पहली example रहती है, for example, I've drawn it here, diagrammatic representation. इसमें हम example लेते हैं कि एक police department है of a certain state. That police department has announced that there's a criminal, so and so criminal. There's a criminal, most wanted criminal X. And anybody who finds that criminal and reports the same to us, police department of that state will provide you with 10 lakh rupees, 10 और 5 lakh rupees. ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट एक एडवर्टीजमेंट भी न्यूज़पेपर में रिलीज करते हैं, पब्लिश करते हैं और अनाउंसमेंट भी करते हैं कि एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है एक्स. वी वांट दैट क्रिमिनल एट एनी कॉस्ट एंड whosoever finds that criminal और हमें वो लाके देता है, so we'll be rewarding that person with 5 lakh rupees, is it? अब ये एक contract है which is a unilateral contract, which means it's a contract by the police department which is made to public at large. किसी एक इंसान को ये contract नहीं किया गया, किसी एक इंसान के साथ नहीं किया गया. Unilateral का मतलब ही क्या रहता है कि एक ऐसा contract which is a one-sided contract and it is made to public at large. और इसमें क्या रहता है, इट इज एन एक्सचेंज फॉर एन एक्शन. डू नॉट एवर थिंक कि यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसिडरेशन होगा ही नहीं. अब यहाँ पे जब पब्लिक में से कोई भी एक इंसान, फॉर एग्जाम्पल बी, कोई भी एक इंसान पुलिस डिपार्टमेंट को उस क्रिमिनल को लाके देगा, तो दिस इज एन एक्शन फॉर विच ही विल रिसीव 5 लाख रुपीज. इट मीन्स कि अगर मैं बात करूं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स की, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दो इट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज इन एक्सचेंज फॉर एन एक्शन. यहाँ पे जो पब्लिक है, पब्लिक में से कोई भी इंसान जो इसको एक्सेप्ट करेगा, दैट पर्सन will be providing you with an action, and in exchange for that action, for that service which is provided by this person, he will be getting a reward in return. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कंसिडरेशन हमेशा रहेगी which is in form of an action or service rendered by anyone from public at large. तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या रहे, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज इन एक्सचेंज फॉर एन एक्शन. दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट माई डॉग, बुलडॉग, आवर फेवरेट एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट माई बुलडॉग and I have published an advertisement in the newspaper that whosoever helps me find my dog and returns it back to me, I'll be giving that person 10,000 rupees. मैं उस इंसान को 10,000 rupees दूंगी. अब it is an offer basically which is made by me to public at large. मैंने किसी particular specified person के साथ ये contract नहीं किया. It's a unilateral contract. I have promised to public at large that whosoever acts upon the terms and conditions of my contract, terms and conditions of my offer, जो इसको पूरा करेगा, I'll be definitely paying that person. It means अब जो इंसान मुझे लाके देगा, उस इंसान को मुझे 10,000 रुपीज देने होंगे. तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहते हैं कि पहली बात, ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. इट इज इन एक्सचेंज फॉर एन एक्शन, क्योंकि एक इंसान एक्शन परफॉर्म करता है एंड इन रिटर्न फॉर दैट एक्शन ही इज बीइंग पेड. तो यहाँ पे कंसिडरेशन डेफिनेटली रहती है. मोरओवर यहाँ पे ओनली द पार्टी मेकिंग एन ऑफर, फॉर एग्जाम्पल मी इन दिस एग्जाम्पल, I'll be obliged, I'll be having legal rights and obligations to compensate that person, क्योंकि उसने मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करी है, उसने मुझे मेरा डॉग ला के दिया है. दिस पर्सन हैज एक्टेड अपॉन, वो बंदा कोई भी हो सकता है फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज. सिंस दिस पर्सन हैज एक्टेड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी उसको फुलफिल कर सकता है. सो आई विल बी ऑब्लिग्ड, आई विल बी हैविंग लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स दैट पर्सन, और मुझे उसको 10,000 रुपीज देने होंगे.
अब अगर कोई इंसान मुझे मेरा डॉग ला के देता है तो आई कैन नॉट रिफ्यूज टू पे दैट पर्सन। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने आपके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया, सिंस इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, सो हूसोएवर फ्रॉम दैट पब्लिक जो उसको परफॉर्म करेगा, मान लिया जाएगा कि उस इंसान के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो चुका है, सिंस इट इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। किसी एक इंसान को नहीं किया था, तो जो इंसान उस चीज की टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करेगा और मेरा डॉग मुझे ला के दे देगा, उस इंसान के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो बोथ द पार्टीज हैव लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, तो यहाँ पे मेरी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बचती हैं, बिकॉज द अदर पर्सन हैज परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो आई विल बी ऑब्लिग्ड टू कॉम्पेंसेट दैट पर्सन एज प्रोमिस्ड। मुझे उसको कॉम्पेंसेट करना होगा, एंड इन केस आई मेड अ ब्रीच, अगर मैं उसको नहीं देती तो ही हैव लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की वो लॉसूट मेरे अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में कि ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, विच मीन्स एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है विच इज टू बी परफॉर्म्ड इन नियर फ्यूचर। अब यहाँ पे जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, यानी कि जब मैंने ऑफर पब्लिक को दिया था बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट, उस टाइम के बाद ये होना था। कभी भी इन नियर फ्यूचर हो सकता है, एनीबडी कैन ब्रिंग दैट डॉग टू मी, एनीबडी कैन ब्रिंग दैट मोस्ट वांटेड क्रिमिनल टू द पुलिस डिपार्टमेंट, तो कोई भी इंसान इसको परफॉर्म कर सकता है। जो इसको परफॉर्म करेगा उसके साथ एक लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज बन जाएंगी, एंड अ कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी कंक्लूडेड कि वो बन चुका है। तो इन केस आई हैव मेड अ ब्रीच, दैट पर्सन कैन स्यू मी, एंड मोर ओवर इट्स एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है कि जो लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं, दे आर येट टू बी परफॉर्म्ड। मुझे कोई डॉग लाके देगा और देन आई विल कॉम्पेंसेट दैट पर्सन, तो ये एग्जीक्यूटरी होता है, इट इज टू बी डन इन नियर फ्यूचर, इज इट। तो ये रहता है हमारा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहे कि ये वन साइडेड होता है, इट इज इन एक्सचेंज फॉर एन एक्शन, सिंस इट इज इन एक्सचेंज समथिंग इन रिटर्न होता है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन डेफिनेटली होगी। इट्स अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज हैव लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, बट यहाँ पे ध्यान रखना कि देर इज नो क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑन द पार्ट ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम पब्लिक। मैंने सिर्फ एक ऑफर दिया है, इट्स अ जनरल ऑफर। ध्यान में रखना कि इट्स अ जनरल ऑफर विच इज बीइंग मेड बाय मी टू पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मेरी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं कि मुझे पैसा देना है उस इंसान को जो मेरा डॉग लाके मुझे देगा। यहाँ पे पब्लिक में से किसी के पास भी कोई लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं है, बिकॉज नोबडी हैज प्रॉमिस्ड मी। एज इन केस ऑफ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे कि दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने पब्लिक को ऑफर किया था, जो उसको पूरा करेगा दैट पर्सन विल बी deemed to be concluded as a contract in a contract with me, is it? तो क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑन द पार्ट ऑफ अदर पार्टीज यानी कि ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज वो अराइज नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रहेंगी, बिकॉज उन्होंने मुझसे कोई प्रॉमिस नहीं किया। मोर ओवर ये चीज वॉलंटरली बेसिस पे होती है। ऑब्वियसली आई कैन नॉट फोर्स एनीबडी कि आप मेरा डॉग मुझे लाके दो, जिसकी मर्जी होगी वॉलंटरली वो इंसान इसको परफॉर्म करेगा, वॉलंटरली करेगा, और मुझे उसको कॉम्पेंसेट करना होगा, बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड। सिंस दे हैव नॉट प्रॉमिस्ड मी एनीथिंग, उन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस नहीं किया था, तो इन ऑब्वियसली वो ब्रीच कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन ऑफ देयर ब्रीच कैन नॉट अराइज। ऑब्वियसली वो सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो इट इज देयर चॉइस, दे आर फ्री, बिकॉज वो वॉलंटरली होगा। मोरोवर ध्यान में रखना, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जांपल रहती है जनरल ऑफर्स। जब हम ऑफर करेंगे ना, ऑफर कॉन्सेप्ट को हम रीड करेंगे, उसमें विल बी डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ ऑफर्स, तो उसमें हम देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स, और एक ऑफर रहता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर हम तब डिस्कस करेंगे विद अलॉट मेनी केस लॉज, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि जनरल ऑफर्स आर एग्जांपल ऑफ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें भी क्या रहता है कि जनरल ऑफर एज द टर्म इंडिकेट्स इट्स एन ऑफर मेड बाय अ पर्सन टू पब्लिक एट लार्ज। ये जो दोनों एग्जांपल्स मैंने बताई ये जनरल ऑफर्स ही हैं, यानी कि दीज आर ऑफर्स मेड बाय द पार्टीज टू पब्लिक एट लार्ज, तो ये जनरल पब्लिक को दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज द बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट अगेन इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या रहता है, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। जिस चीज की इन्फोर्सिबिलिटी होती है, इट मीन्स इट इज समथिंग विच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, एंड इन केस ऑफ वायलेशन कोर्ट कैन कंपेल observance of law, is it? Parties have legal rights and obligations towards each other। ये सब कुछ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड, तो हम अब देखेंगे बायलेटरल क्या रहता है। बायलेटरल एज द टर्म इटसेल्फ स्पीक्स, टू पार्टीज, बाय मीन्स टू, व्हेन टू पार्टीज दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, उसको हम बोलते हैं बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसकी एग्जांपल मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही दे दी थी, जो मैं रिपीट करूंगी, विच इज देयर आर टू पीपल ए एंड बी। ए बेसिकली बी को बोलता है दैट आई विश टू सेल माई कार टू यू, विल यू बाय माई कार? बी सेज यस, आई एम विलिंग टू परचेज योर कार फॉर 2 लाख रुपीज। यहाँ पे ए ने अपनी कार दी बी को, और बी ने इन रिटर्न ए को 2 लाख रुपीज दिए। इट मीन्स इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अ bilateral contract. Now you can definitely chalk out differentiation between these two contracts, is it?
डायग्राम्स आर हियर। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम एक जगह तो किसी एक स्पेसिफाइड इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक जगह वी आर ओनली ऑफरिंग एंड एनीबडी फ्रॉम पब्लिक वॉलंटरली कैन एक्सेप्ट इट। तो डिफरेंशिएशन हुआ दोनों में। और यहाँ पे एग्जांपल क्या रहती है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी, यहाँ पे क्या रहेगा कि बोथ दीज पार्टीज हैव लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। जो भी इंसान ब्रीच करेगा, या तो ए अपनी कार देने से मना कर देगा या ए की कार देने के बाद बी उसको 2 लाख रुपीज देने से मना कर देगा। तो यहाँ पे इन केस ऑफ ब्रीच ऑन द पार्ट ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, ईदर ऑफ द पार्टीज, कोर्ट कैन कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ। तो बायोलेटरल का मतलब ही क्या होता है कि ये दोनों पार्टीज की लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं क्योंकि दे हैव वॉलंटरली एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इज इट। और ये जो आपको बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे, ये यूजुअली देखने को मिलते हैं जब हम ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ट्रेड में यूजुअली प्रोफेशनल लाइफ में ये होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स करते हुए, कि पीपल एंटर इनटू दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे ये सेल डीड है, तो यहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जब हम दो लोग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन एडवोकेट एंड अ क्लाइंट और डॉक्टर एंड अ पेशेंट, ये भी क्या रहती हैं, बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स रहती है। प्रोफेशनल लाइफ में हम यूजुअली बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में ही एंटर होते हैं। So I've given an example of a sale deed। तो ध्यान रखना कि बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी एग्जीक्यूटरी होते हैं। अब यहाँ पे इट विल बी परफॉर्म्ड इन नियर फ्यूचर। ए जो है वो बी को किसी दिन कार देगा एंड बी देन विल डिलीवर, व्हेन दिस कार इज डिलीवर्ड टू बी, देन बी विल बी मेकिंग अ पेमेंट टू ए फॉर हिज कार 2 लाख रुपीज। तो ये भी एग्जीक्यूटरी होते हैं। जो कॉमन पॉइंट है दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में वो ये रहता है कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूटरी होते हैं। एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है कि parties definitely have legal rights and obligations towards each other, but those obligations will be performed in near future। फ्यूचर में होगा, यहाँ पे भी इंस्टेंटली इमीडिएटली नहीं होगा। तो दोनों में यही रहता है कि आपका जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच इज टू बी परफॉर्म्ड इन नियर फ्यूचर, इज इट। और बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या रहता है, कंसेंसस एड आइडम रहता है। कंसेंसस एड आइडम का भी बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, विच इज पार्टीज दे अग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। यानी कि यहाँ पे दो इट्स नॉट अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हियर, कंसेंसस एड आइडम ये कुछ एसेंशियल्स होते हैं फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंसस एड आइडम का मतलब फिर भी आई विल बी टेलिंग यू, बिकॉज बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में ये रहता है कि पार्टीज दे अग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। यानी कि ए जिस कार को बेचना चाहता है, बी उसी कार को खरीदना चाहता है, एंड इन रिटर्न बी इज पेइंग 2 लाख रुपीज। तो बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स जब हम करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में या ट्रेड एंड कॉमर्स के टाइम पे, जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यहाँ पे कंसेंसस एड आइडम रहता है। यानी कि दोनों पार्टीज के माइंड का जो कंसेंसस है, यानी कि दे हैव अग्रीड अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो जो कार ए बेचना चाहता है वही कार बी लेना चाहता है, एंड इन रिटर्न बी इज विलिंग टू पे 2 लाख रुपीज टू ए। तो अगर इन दोनों का कंसेंसस नहीं होगा, यानी कि इनकी अग्रीमेंट नहीं होगी, उनकी मेंटल लेवल मैच नहीं करेगा ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंसेंसस नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में ही रहता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करना चाहती हूँ, विच इज रेलेवेंस ऑफ टाइम। टाइम की रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में यूजुअली नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव मेड एन ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज, एनीबडी कैन कम टू मी ऑन एनी डे। एक दिन बाद भी आ सकते हैं, 2 दिन बाद भी आ सकते हैं, मे बी आफ्टर 10 days somebody finds my dog and returns it back to me। जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कोई मुझे लाके देगा, सर्विस परफॉर्म करेगा, एक्शन करेगा, उस टाइम पे दैट कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। तो टाइम इतना रेलेवेंट फैक्टर नहीं रहता यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में, बट इफ आई टॉक अबाउट बायोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे टाइम की रेलेवेंस रहती है, ठीक है। यानी कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड विद इन certain specified time, and after the expiry of that reasonable time, तो these contracts जो है वो भी expire हो जाते हैं। तो relevance है time की, not in case of unilateral but it definitely in case of bilateral contracts। So I hope guys it was a 10-minute topic। I hope आपको ये समझ आ गया differentiation between unilateral and bilateral contracts। कॉन्ट्रैक्ट को समझना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, it will be very easy for you to understand। And thank you so much guys। Do like, share, comment and subscribe to my channel। If you find my video useful, please comment it and let me know। Thank you guys। Stay safe, keep learning and bye bye।